So in this lecture, we will discuss some more group of order 30, 108 and many more. So first I consider a group of order 30. Now suppose G is a sum group which has a order 30. So write it in a prime factor. So it is a 2 into 3 into 5. So order of G, which is equal to 2 into 3 into 5. So it means G has 3 type of shallow subgroup. First, shallow 2 subgroup, shallow 2 subgroup, shallow 3 subgroup, and shallow 5 subgroup, because it has 3 prime factor. The shallow 2 subgroup of order that is equal to 2 of order that is equal to 3, and this is of order so that is equal to 5. So at least one shallow 2 subgroup, at least one shallow 3 subgroup, at least one shallow 5 subgroup. Now I start from shallow 5 subgroup. So because 5 is some bigger prime factor. So what is the number of shallow 5 subgroup? 5 subgroup. So this is equal to 1 plus 5k, right? Also, the second condition is 1 plus 5k, it divides order of G. Since it is co-prime, it is prime with 5, so it means it divide 1 plus 5k, it divides is equal to divide 6, so it implies k is equal to 0 or 1. So we have two possibilities. If k is 0, then it has only one shallow p subgroup, yani shallow 5 subgroup, which must be normal. And if k is 1, then it has 6 shallow 5 subgroup. So I divide it into case 1 and case 2. So case 1, if k is equal to 0, then G has only one shallow 5 subgroup of order 5, because it is only unique, so which must be normal in G. So what we get? We get a one normal subgroup of order 5 in G. Now second is case number 2. So this is a case number 2. Now in this case, k is equal to 1. If k is equal to 1, so number of shallow 5 subgroup, so this is equal to 6, and each of order 5. So suppose H1, H2, H3
H4, H4, H5 and H6. So these are 6 shallow p subgroup of group G. So these are shallow 5 subgroup of group G is that order of Hi, which is equal to 5. This is 6 shallow 5 subgroup of order 5 for every I is running from 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now this is the mean case. Now check that what is the element, what is the number of element in the intersection. So that we will check that as Hi intersection Hj. So it is a part of Hi when I is not equal to j. So by Lagrange's theorem, order of Hi Hj which divide order of Hi which is equal to 5. So 5 is a prime number. So it has two possibilities. Order of Hi intersection Hj is equal to 1 or 5. So 5 is not possible because they are distinct shallow 5 subgroup. So 5 is not possible. So only we have one values, that is 1. So it means this value, it implies order of Hi intersection Hj which is equal to 1 for I is not equal to j. So we have 6 shallow 5 subgroup and in which 1 is common element, and we know that common element is only identity. So each subgroup has 5 non-identity element. So each element has 5 non-identity element. So what is the order of that non-identity element? So check that. Suppose if we have some non-identity element belongs to Hi, again by Lagrange's theorem, order of A divide order of Hi. So this is a 5 because it is a non-identity, so it cannot be equal to 1. So it implies order of A is equal to 5. So it means the non-identity elements have order 5. So non-identity element have order 5 and identity element have order 1. So what we conclude? So we have these 5 subgroups: H1, H2, H3, H4, H5 and H6. So these are 6 subgroup of order, each has order 5. Now in this one identity and 4 non-identity, because order of Hi is equal to 5. So one common element, so the common element is identity. So one identity and 4
non identity elements. Non identity elements. It means from 4 from this set, this group, 4 from this, 4 from this, 4 from this, 4 from this, 4 from this. So total non-identity elements are 24. 24 non-identity elements and 1 is identity elements. Identity elements, and each non-identity element has order 5. So what we get? So we get 24 non-identity element of order 5 and 1 identity element of order 1. So we get this values. We get now from the cello 5 group we come to at this stage. Now if we come to at this stage, now we go to the next cello subgroup. So here from this case number 2, we come to conclusion at this point that in the group G we has 24 non-identity element of order 5 and 1 is identity element of order 1 and order of G is 30. तो G ਦੇ ਵਿੱਚ total 30 element ਆ, ਅਸੀਂ 25 element ਦਾ behavior check ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਲੋ 5 ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਲੋ 3 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲੋ 3 subgroup ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਜਮਾ 3k such that 1 ਜਮਾ 3k ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 10 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 10 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ 2 ਤੇ 5 ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਗੁਣਾ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟਰਮ ਆ ਉਹ 10 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ 10 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ then we have two possibilities। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ 1 ਹੋ ਗਈ। ਜੇ k 0 ਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਅਸੀਂ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਈਏ। केस 2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਸਬ ਕੇਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਰਾਈਟ। ਜੇ k 0 ਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ G has only unique cello P subgroup so which must be normal in G। so G has cello has unique ja only one cello 3 subgroup which is normal in G। तो साडा इत्थों तक रिजल्ट आ गया कि जा तां G दे विच सैलो 5 सब ग्रुप होएगा ਜਾਂ 3 होएगा और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਸਬ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ 1 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। तो नंबर ऑफ सैलो 3 subgroup
सब ग्रुप किन्ने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। सो 1 प्लस सो दिस इज 1 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10। सो 10 हो गए तो उन्हां दा नाम रख दईए K1 K2 K3 एंड K10 और हरेक दा ऑर्डर ਜਿਹੜਾ है वो कितना होएगा 3 ਦੇ बराबर। सो सैलो 3 सब ग्रुप हरेक ਦਾ ऑर्डर कितना होएगा 3 ਦੇ बराबर। ਹੁਣ देखिए कॉमन पार्ट किन्ने एलिमेंट आ। सो किद्दां चेक करांगे ऑर्डर ऑफ KI इंटरसेक्शन KJ इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ KI ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇ बराबर आ क्योंकि प्राइम नंबर आ। सो 3 ਦੇ बराबर हो नहीं सकता क्योंकि दे आर डिस्टिंक्ट। सो ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ KI इंटरसेक्शन KJ which is equal to 1 for I is not equal to J। this values आ गई। ਇਹਦਾ मतलब कॉमन एलिमेंट ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਏਗਾ। तो ਜਿਹੜਾ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 3 ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ कि ਆਪਾਂ कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट KI च लईए तो ऑर्डर ऑफ KI नू डिवाइड करेगा और एक किहदे बराबर आ 3 दे तो ऑर्डर ऑफ A 3 दे बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। सो टोटल इनू देखिए एक एलिमेंट कॉमन आ बाकी किन्ने रह गए 2 दो ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ तो 20 रह गए नॉन आइडेंटिटी जिन्हां दा ऑर्डर कितना होएगा 3 और एक होएगा आइडेंटिटी जिहदा ऑर्डर होएगा 1। सो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ कि इट हैज़ 1 ਜਾਂ 20 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट of order 3 और एक होएगा आइडेंटिटी एलिमेंट of order 1 तो one thing is clear। सो साडे कोल 20 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इत्थों आ गए। हुण आपां देखिए पिछे आपां डिस्कस कीता सी कि जी दे विच साडे कोल केस नंबर 2 जित्थों स्टार्ट कीता जी दे विच 25 एलिमेंट 24 एलिमेंट जिहड़े है उन्हां दा ऑर्डर 5 है। इत्थे आपां कहने आ कि 20 एलिमेंट ऐसे है जिन्हों का ऑर्डर 2 आ तो टोटल किन्ने हो गए 44 जबकि जी दे विच एलिमेंट किन्ने आ 30। ਇਹਦਾ मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हैगा। जे पॉसिबल नहीं हैगा सो इस केस नूं साडे कोल की लग गई कंट्राडिक्शन लग गई। जी दे विच ये 20 एलिमेंट कहंदे ऑर्डर 3 दे आ 24 एलिमेंट 5 दे ऑर्डर तो टोटल तो 30 तो ज़्यादा हो गए। जे 30 तो ज़्यादा हो गए ਇਹਦਾ मतलब this case is not possible। so which is not possible क्यों नहीं possible क्योंकि 25 एलिमेंट पहला लभे जिन्हां दा ऑर्डर 5 आ और 20 एलिमेंट इत्थे लभ ले जिन्हां दा ऑर्डर 3 आ तो टोटल साडे कोल किन्ने हो गए 24 जमा 20 किन्ने हो गए 44 44 और 44 होने दे नाल जद कि जी का ऑर्डर की है 30 है तो 30 तो ज़्यादा तो पॉसीबल ही नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब विच इज़ नॉट पॉसीबल। तो ਇਹਦਾ मतलब की होया कि साडे कोल ਜਾਂ ਤਾਂ केस ਜਿਹੜਾ साडे कोल है 1 पॉसीबल और केस 2 ते कंट्राडिक्शन लग गई यानी सब केस 2 ते कंट्राडिक्शन लग गई। केस 1 की कहता भी जी दे विच साडे कोल सैलो
3 सब ग्रुप होएगा। ठीक है जी। सो ये आपां सब केस किहदा सी, ये सी अपने कोल ਇਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲੋ 3 ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲੋ 5 ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਨੋਰਮਲ। ਤਾਂ ਵਟ ਵੀ ਗੈਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੋ 5 ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਲੋ 3 ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ और दोनों किदां दे नॉर्मल। सो वी कैन से दैट either G has shallow 5 subgroup, shallow 5 subgroup और shallow 3 subgroup, shallow 3 subgroup दोनों की है नॉर्मल आ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਰਮਲ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਇਆ ਤਾਂ G ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਿੰਪਲ, G ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ we can find the result of such kind of question. Now अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 108 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 108 ਆ। ਇਹ GNDU 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 48 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ वो 108 वाला डिस्कस कर लीए और इदा ही 48 वाला असी डिस्कस करांगे। ठीक है जी। सो पहला आप 48 वाला डिस्कस कर लीए। नाउ द स्टेटमेंट इज एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 48 हैज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 और 18। मतलब जेड़े ग्रुप का ऑर्डर 48 है वो भी साडे कोल सिंपल नहीं होएगा। सिंपल कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 16 ਆ, ਦੂਜਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 8। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ G ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 48। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ प्राइम फैक्टर च लिखिया। सो 2 की पावर 4 इंटू 3, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। सो G हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज़। वन इज़ सैलो 2 सब ग्रुप और ਇਹਦਾ ऑर्डर होएगा ऑफ ऑर्डर कितना होएगा जी, 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है जी। एक हिस्सा साढ़े कोल आ गया। दूजा की है कि ਇਹਦੇ कोल सैलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना होएगा जी, 3 की पावर 1 ही है। सो 3 होएगा। दिस वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होंगी, वैसे तो आप चाहे सैलो 2 सब ग्रुप तो स्टार्ट कर लीए चाहे 3 तो कर लीए। सो ये कोई फर्क नहीं है। तो चाहे ये तो कर लीए चाहे ये तो कर लीए, किसी भी प्राइम फैक्टर तो असी स्टार्ट कर लीए। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम सैलो 2 सब ग्रुप। सो वट इज द नंबर ऑफ सैलो 2 सब किन्ने होणगे जी, 1 जमा 2 के। और किदां दे होणगे, 1 जमा 2 के बाकी टर्म नूं डिवाइड करनगे, यानी 3 नूं डिवाइड करनगे। जे 3 नूं डिवाइड करनगे सो के दियां 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, एक आ गई 0, एक आ गई 1।
तो इन्हों दो केस दे विच असी लै लईए। सो केस नंबर 1, केस नंबर 1 जे के 0 है तो यदा मतलब जी हैज़ यूनीक 1 भी कह सकते हैं, यूनीक भी कह सकते हैं, सैलो 2 सब ग्रुप, यूनीक सैलो 2 सब ग्रुप, और ऑफ ऑर्डर कितना होएगा जी 16। सो विच मस्ट बी या विच इज नॉर्मल इन जी, विच इज नॉर्मल इन जी। ठीक है जी। सो केस 1 असी प्रूव कर लिया भी ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है, यदा मतलब ये सिंपल नहीं है। हुण केस नंबर 2 दे विच देखिए की हो रहा। सो केस नंबर 2 च के दी वैल्यू आ गई 1। जे के दी वैल्यू 1 आ तो नंबर ऑफ सैलो 3 सब ग्रुप कितने हो गए जी, ये हो गए 3 दे बराबर हो गए। जे 3 दे बराबर हो गए तो असी उन्हां दा नाम रख लईए, लैट H1 H2 एंड H3 बी ए सैलो 3 सब ग्रुप, डिस्टिंक्ट बल्कि डिस्टिंक्ट सैलो 3 सब ग्रुप। तो हरेक दा ऑर्डर सानू क्लीयर आ 3 दे बराबर आ। ਇਹਦਾ मतलब नॉन आइडेंटिटी का ऑर्डर 3 होएगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होएगा। सो कॉमन एलीमेंट ये एक ही है। नहीं आप गल कर रहे हैं केस नंबर, हाँ सैलो 2 की गल कर रहे हैं। तो अगर के 1 है तो सैलो 2 सब ग्रुप किन्ने हो जाएंगे, चेक कर लेने, 3 हो जाएंगे। अगर 3 हो जाएंगे तो साढ़े कोल उन्हां दा ऑर्डर कितना होएगा, ऑर्डर उन्हां दा 16 होएगा। सैलो 2 का ऑर्डर 16 है। सो साढ़े कोल 3 सैलो सब ग्रुप आ गए, H1 H2 H3, और हरेक दा ऑर्डर कितना होएगा 2 दी पावर 4 होएगा। 2 दी पावर 4 मतलब 16 होएगा। I is running from 1 2 3। हुण इत्थे प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब जरूरी थोड़ा कॉमन एलीमेंट ये एक आएगा। जे प्राइम फैक्टर हो तो आइडेंटिटी कॉमन आता क्योंकि दे आर डिस्टिंक्ट, बट इत्थे सिचुएशन डिफरेंट हो गई। तो जे डिफरेंट सिचुएशन आ सो असी उन्हों हैंडल करिए। 2 सब ग्रुप लै लो H1 H2, तो सानू एक चीज़ क्लीयर आ, ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसैक्शन H2 एक किनू डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ चाहे तुसी H1 लिख लो चाहे H2 लिख लो, लैग्रैंजेस थ्योरम का। और ये बारे तुहानू पता है 16 के बराबर आ। जे 16 के बराबर आ तो आपां हुण इहदियां पॉसिबिलिटीज़ देख लईए। एक तो होएगा 1, ठीक है जी, क्योंकि आइडेंटिटी यानी कि कॉमन एलीमेंट 1 होएगा, यदा डिवाइजर। दूजा होएगा यदा डिवाइजर 2, और तीजा होएगा यदा डिवाइजर 4, और चौथा होएगा यदा डिवाइजर 16। तो चौथा होएगा यदा डिवाइजर 16, ठीक है। सो 16 तो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि जे ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसैक्शन H2 16 आ जाए तो यदा मतलब H1 ते H2 बराबर हो गए, जेड़ा कि नॉट पॉसिबल, जेड़ा कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि जिन्ने भी ग्रुप है 3 दे 3 ये डिस्टिंक्ट है। यदा मतलब आ कंडीशन मैं काटा मारता, ठीक है। तुसी चाहे अगे केस के अकॉर्डिंग चलिए
ਤੇ ਪਰ मैं इस कंडीशन ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ मैं ऑप्शन भुल गया ਕਿਹੜੀ 8 ਦੀ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 8 ਵੀ ਤਾਂ 16 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ 1 2 4 8 ਤੇ 16 ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਾਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 ये हो गया 8, है ना। 8 का मतलब 2 की पावर 3, जद कि ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 ये कितना होगा 2 की पावर 4। तो असी पहले रिजल्ट किया सी कि 2 की पावर जिहड़ा साडे कोल है कि दिस इज़ अ P की पावर n अगर ग्रुप है ਉਹਦੇ ਚ P ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ H1 ऑर्डर ऑफ H1 इंटू H2 ये अगर लिया, ठीक है, इन्हों से लिख सकते ऑर्डर ऑफ H1 गुना ऑर्डर ऑफ H2, दिस वैल्यूज आ गई। और नीचे लिख सकते ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ध्यान नाल देखो, ये है ऑर्डर ऑफ H1 कितना है 2 की पावर 4, यानी 16 गुणा 16। हुण बटे आपां वैल्यू सबस्टिट्यूट करके देख लीए। अगर मैं ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 लेना, ठीक है, अगर मैं इनू 1 लेना, दिस इज 1, तो ये साढ़े को आ गया 16 गुणा 16। तो दिस इज ग्रेटर दैन ऑर्डर ऑफ जी। ਇਹਦਾ मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं 4 लेना तो साढ़े कोल की आ गया 16 चौका 64, और ਇਹਦਾ ऑर्डर भी जी दे ऑर्डर तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि दैट इज ग्रेटर दैन ऑर्डर ऑफ 108। So again that is not possible because it is a part of the subgroup of the part of G, because it is part of G। तो ਇਹਦਾ ऑर्डर G ਦੇ ऑर्डर ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇ ਵੀ 108 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਤੇ ਵੀ 108 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋ ਥਰਡ ਟਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 8। सो 8 ते अगर मैं सबस्टिट्यूट करदा तो वो 32 हो जाता, 32 लैस दैन 1 हो जाता। ਇਹਦਾ मतलब कि एट दिस पॉइंट ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 इट इज़ ग्रेटर दैन ऑर्डर ऑफ G। कदों? अगर साढ़े कोल ਇਹਦਾ ऑर्डर 1 हो जाए ਜਾਂ 4 हो जाए तो ਇਹਦਾ ऑर्डर G ਦੇ ऑर्डर तो बड़ा हो जाता। ਇਹਦਾ मतलब ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। तो 1 वाली भी पॉसिबल नहीं, 2 वाली भी पॉसिबल नहीं, 4 वाली भी मेरा ख्याल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आप 4 सबस्टिट्यूट, हाँ 1 वाली भी नहीं है, 2 वाली भी नहीं है, ठीक है जी, तो 4 वाली भी नहीं है। सो तिन्ने पॉसिबिलिटीज साढ़े कोल खत्म हो गई। 16 वाली असीं पहले ही रिजैक्ट कर बैठे, तो साढ़े कोल इक्को ही पॉसिबिलिटी रह गई 8 वाली। हुण 8 वाली पॉसिबिलिटी नूं समझण दी कोशिश करिए। नाउ 8 वाली पॉसिबिलिटी है ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 जिहड़ा किहदे बराबर आ गया 2 की पावर 3 दे, और ऑर्डर ऑफ H1 ते ऑर्डर ऑफ H2 ये कितना हुंदा 2 की पावर 4 दे, यानी 16 के बराबर। तो ਇਹਦਾ मतलब
उस रिजल्ट के मुताबिक जिहड़ा सब तो पहला असी कीता सी कि H1 इंटरसैक्शन H2 it is a normal subgroup of group है ना H1 एंड H2। क्लियर हो गया? बड़े ध्यान नाल समझियो ये पॉइंट कि H1 इंटरसेक्शन H2 ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H1 एंड H2 हो गया। जे नॉर्मल सबग्रुप ऑफ दिस हो गया तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि ये H1 दे पॉइंटा नाल भी कम्यूट करेगा और H2 दे पॉइंटा नाल भी कम्यूट करेगा। समझ आ गई कि दिस वैल्यू जिहड़ी साडे कोल है ये की हो गया, जे नॉर्मल हो गया तो H1 इंटरसेक्शन H2 दिस इज कम्यूट विद X इंटू H1 इंटरसेक्शन H2। ये कम्यूट करेगा फॉर एवरी X बिलोंग्स टू H1 नाल, क्योंकि ये नॉर्मल आ, नाल दे नाल H2 दे एलीमेंटा नाल भी कम्यूट करेगा। आ गई गल समझ कि X1 दे एलीमेंट नाल भी कम्यूट करेगा और नाल दे नाल H2 दे एलीमेंट नाल भी कम्यूट करेगा। ठीक है जी। सो सानू पता कि जिहड़े एलीमेंट कम्यूट करते वो किधे चल जाते नॉर्मलाइजर च, यानी H1 दे एलीमेंट नाल कम्यूट किया तो H1 किधे च चला गया नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। सिमिलरली H2 भी नॉर्मलाइजर च चला गया और सिमिलरली क्योंकि सब ग्रुप आ तो H1 इंटू H2, so this part is contained in normalizer of H1 intersection H2। so अगर कन्फ्यूजन आ आप इनू किसी होर ढंग नाल भी समझ लईए। किद्दां जी? इहदे चों एलीमेंट लैना, इहदे विच भेजना। तुसीं इहदे चों एलीमेंट लो, इहदे चों एलीमेंट लै लिया, X लिया, मान लो H1 इंटू H2 वर्गा होएगा। H1 पहले विच आ गया, H2 दूजे च आ गया। ठीक है जी। हुण H1 जिहड़ा है ये कम्यूट करदा, इस करके ये किनू बिलोंग कर गया नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 नाल हो गया है ना। जे हजे भी कन्फ्यूजन आ थोड़ा जिहा होर एक्सपैंड कर लेने। हुण आ जिहड़ी कंडीशन है ये कंडीशन H1 लिए भी ट्रू आ क्योंकि X बिलोंग्स टू H1 और H2 लिए भी ट्रू आ। ਇਹਦਾ मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 into small h1 which is equal to small h1 intersection H2। same H2 ली H1 intersection H2, this is H2 which is equal to H2 into H1 intersection H2, this values है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, H1 ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ नॉर्मलाइजर ऑफ H1 च, यानी आ किधर चला गया, ये चला गया नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 च। ठीक है, आ भी ये चला गया और एक ही है सब ग्रुप की होंगे क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट भी इनू बिलोंग कर गया। जे कर गया तो X इनू बिलोंग कर गया। X की है H1 इंटू H2 का एलीमेंट, so we get this kind of condition, right? So we get this kind of condition, ये याद रखना। So this is very important part of this question। हुन दोनों सब ग्रुप आ किदे G दे, अगर G दे सब ग्रुप आ तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, बड़े ध्यान नाल समझना। ए किदां दा हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ
H1 H1 into H2 और दिस वैल्यू कितनी हुई ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 बटा ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसैक्शन H2 समझ आ गई गल हुण तुहाडे कोल सारियां दी वैल्यू पता है किद्दां ऑर्डर ऑफ H1 दी कितनी है 16 ਇਹਦੀ कितनी है 16 और ਇਹਦੀ कितनी है 8 2 ਦੀ पावर 3 यानी 8 ये कितना आ गया 32 आ गया ठीक है सो इस ग्रुप का ऑर्डर 32 तो वड्डा ਜਾਂ बराबर आ ये गल नूं समझ लो इस ग्रुप का ऑर्डर 32 तो वड्डा ਜਾਂ बराबर आ समझ आ गई गल दूजा बाय लैग्रैंजेस थ्योरम ये जिहड़ा ग्रुप है सब ग्रुप आ तो नैचुरली H1 इंटरसैक्शन H2 ए ऑर्डर ऑफ G नूं डिवाइड करेगा और ऑर्डर ऑफ G कितना है 108 है ठीक है जी कितना 108 है सो 32 इनू डिवाइड नहीं करता ठीक है जी 32 इनू डिवाइड नहीं करता 32 तो ऑनवर्ड कोई चेक करो नंबर 108 तक केड़ा ऐसा नंबर है जिहड़ा 108 नूं डिवाइड करदा होवे आपां 32 तो स्टार्ट हो जाए 32 33 34 35 36 सो ऑन सो केड़ा नंबर आ जिहड़ा 108 नूं डिवाइड करदा होवे राइट सो उदों असी सॉरी ऑर्डर ऑफ G कितना है साढ़े को 48 सॉरी सो आई मिक्स द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 108 so that we will discuss later on here again so this is a 16 दोनों 32 16 ते 48 so 32 आ so ये आ गया 32 आ ऑर्डर ऑफ G कितना है साढ़े को 48 तो 32 तो वड्डा केड़ा नंबर आ जेड़ा 48 नूं डिवाइड करे वो 48 खुद है वो 48 इटसेल्फ है जे इटसेल्फ है तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसैक्शन H2 ये किदां दा आ गया 48 के बराबर आ गया और 48 किहदा ग्रुप आ G दा है ਇਹਦਾ मतलब G किहदे बराबर आ गया नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसैक्शन H2 तो G की आ गया G आ गया नॉर्मलाइजर ऑफ H1 intersection H2 so what it means H1 intersection H2 एक ही आ गया नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप G और एदा ऑर्डर कितना है ऑफ ऑर्डर साढ़े कोल कितना है 2 दी पावर 3 2 दी पावर 3 2 दूनी 4 साढ़े कोल आ गया नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इट मीन्स साढ़े कोल G इज नॉट ए सिंपल बिकॉज इट हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप क्लियर सो आप जरूर करैक्ट कर लेना सो 32 तो 48 तक ठीक है सो असी ग्रुप जिहड़ा डिस्कस कर रहे हैं 48 ते सो दिस इज 48 दिस वैल्यूज so similarly in this case this is a factor and when we substitute the value of 1 2 1 साढ़े कोल आ गई 1 2 3 है ना so 1 2 1 2 and 4 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ तो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 48 ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ 48 ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਹੇਅਰ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ 48 ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 108 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 48 ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ 108 ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ
ਹੁਣ 108 ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ no group of order 108 is simple. Same. Show that, this is very important result, show that no group of order 108 is not simple और a question GNDU 2018 च पूछा गया। सो मैथड वही सेम रहना, ठीक है, वही सैलो थ्योरम्स लगनियां। सो असी प्रैक्टिस दे लई कुछ 4-5 जो क्वेश्चन कर लांगे तो सानू उन्हां तो आइडिया मिल जाता है। इदां ही साडे कोल 56 की अगली एग्जाम्पल आ जाती है, वो भी बहुत बार एग्जाम दे विच पुछया गया। सो 35 ते 15 वाला आपां कर ही लिया है ना, 45 आ जाता। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी बुक। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट 108। सो सब तो पहला स्टैप नंबर 1, इनू प्राइम फैक्टर च आपां तोड़िए ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर च किद्दां तोड़ीदा, इदां लिख के। सो बिल्कुल बच्चे अगर मैं दस रहा 5 4 सो 2 27, ठीक है जी, 3 9 3 3। सो ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है जी। सो बेसिकली इट इज़ 108। सो 108 नूं प्राइम फैक्टर दे विच असी लिख लीए, ठीक है जी। 2 की पावर साडे कोल 2 आ गया और 3 की पावर 3 आ गया। सो वन थिंग इज क्लीयर। तो साडे कोल जी दे साडे कोल किन्ने सैलो ग्रुप्स होणगे। सो जी दे साडे कोल हैज़ एक तो हो गया सैलो 2 सब ग्रुप, एक हो गया टैलो 2 सब ग्रुप, एक हो गया सैलो 3 सब ग्रुप, 3 सब ग्रुप सामने नज़र आ रहे। और एदा ऑर्डर होएगा किन्ना जी, 2 की पावर 2 यानी कि 4। एदा ऑर्डर होएगा 3 की पावर 3 यानी 27, ठीक है जी। ये आ गया 4, ये आ गया 27। हुण आपां चाहे 3 तो स्टार्ट कर दईए चाहे 2 तो स्टार्ट कर दईए, वो तुहाडे ते ही डिपेंड करता। सो मैं 3 तो स्टार्ट करन लगा। सो नंबर ऑफ सैलो 3 सब ग्रुप, नंबर ऑफ सैलो 3 सब ग्रुप ये होणगे 1 जमा 3 के। और किद्दां दे होणगे, 1 जमा 3 के 4 नूं डिवाइड करनगे। जो बाकी बचिया 2 की पावर 2 ही बचिया, तो 2 की पावर 2 नूं डिवाइड करनगे। तो साडे कोल के दियां पॉसिबिलिटीज़ देख लो, एक होएगी 0, दूजी होएगी 1। हुण इहदे आपां केस बना दिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 च की होया, के 0 आ। के 0 का मतलब जी हैज़ यूनीक सैलो 3 सब ग्रुप नॉर्मल इन जी, बस नॉर्मल इन जी। ਉਹਦਾ नाम कोई रखना तो रख लो। जी हैज़ 3 सैलो सब ग्रुप विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ नॉर्मल। या सीधा भी लिख सकता जी हैज़ यूनीक नॉर्मल सैलो 3 सब ग्रुप। या यूनीक है तां ही नॉर्मल होया। हुण आ जाए केस नंबर 2।
ਸੋ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 1। ਜੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲੋ 3 सब ग्रुप यानी डिस्टिंक्ट सैलो 3 सब ग्रुप किन्ने होंगे 4 होंगे। ठीक है जी, 1 ना तो 4 हो गए और हरेक का ऑर्डर कितना होएगा 27। तो वो 4 जेडे सैलो है उन्होंने नाम रख ला H1 H2 H3 H4 और ऑर्डर ऑफ HI इंटरसैक्शन HJ। तो पहला असी इन्हां दा ऑर्डर लिख लीए। ऑर्डर ऑफ HI कितना होएगा 27, 3 दी पावर 3। I रन करेगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। हुण अगला स्टैप की हुंदा? अगला स्टैप हुंदा इंटरसैक्शन दे विचों एलीमेंट लभने। अगला स्टैप हुंदा इंटरसैक्शन दे विचों एलीमेंट लभने। सो अगर आप इंटरसैक्शन चो एलीमेंट लभन शुरू कर दईए और दूजे पासे सैलो 3K0 नाल तो हो गया, K1 नाल साडे कोल जिहड़ी इहदी वैल्यूज़ आ गई 4 आ गई, तो 4 साडे कोल इहदे बराबर आ गए। तो सैलो 2 नूं भी डिस्कस कर लीए। सो सैलो 2 सब ग्रुप चलो उन्होंने बाद चो डिस्कस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सैलो 3 सब ग्रुप आप इत्थे तक पहुँच गए H1 H2 H3 और ये डिस्टिंक्ट है अपने दिमाग दे विच रखना। ना वट इज़ द ऑर्डर यानी इंटरसैक्शन दे विच किन्ने एलीमेंट होंगे, है ना। सो वो चैक करन लई सेम मैथड विच डिवाइड ऑर्डर ऑफ H1 जिहड़ा किन्ना है 27 दे बराबर है। इहदा मतलब ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसैक्शन H2 दी पॉसिबिलिटी होगी 1 3 9 ते 27। ठीक है जी। 27 पॉसिबल नहीं क्योंकि फिर H1 ते H2 बराबर हो जाएंगे। तो अगर ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसैक्शन H2 मैं 27 ले लिया, तो यदा मतलब कि H1 ते H2 सेम हो जाएंगे क्योंकि यदि इंटरसैक्शन H1 के बराबर आ गई तो सेम हो गया। सो ये साढ़े को नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। यदा मतलब आ केस रैड वाला आप कट दईए। हुण आ जी उस तो अगले वाली गल, उहदे लई आपां H1 इंटू H2 लै लीए, सॉरी H1 इंटू H2 लै लीए। ये किहदे बराबर हुंदा ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 बटा ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है जी। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी। ऑर्डर ऑफ H1 कितना 27 गुणा 27 बटा साढ़े कोल ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। हुण ध्यान नाल देखियो ऑर्डर ऑफ G कितना है 108। आपां दा इहदा ऑर्डर 108 तो घट रहना चाहिए। जिथे ग्रेटर हुंदा उत्ते कंट्राडिक्शन। जदों असी 1 सबस्टिट्यूट किया यानी जदों इहदी वैल्यू 1 लई है, सो अगेन ग्रेटर दैन 108। अगर असी 3 लई तो वह भी 108 तो वड्डा हो गया। यदा मतलब आ भी रिजैक्ट, आ भी रिजैक्ट। जदों 9 लई वो 108 तो लैस होएगी। सो इट मीनस दिस इज ग्रेटर दैन ऑर्डर ऑफ G if
order of H1 intersection H2, this values, and this is H1 intersection H2 is equal to 1 or 3. ਇਹਦਾ मतलब आ भी रिजेक्ट हो गया, आ भी रिजेक्ट हो गया, आ भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल केड़ा रह गया? 9 वाला। सो 9 वाला मतलब 3 स्क्वायर। सो ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 ए पॉसिबल वैल्यू अगेन 9, जिहदी वैल्यू कितनी 3 स्क्वायर। दूजे पासे ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 ए है 27, 3 दी पावर 3 के बराबर। सो ਇਹਦਾ मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 ये क्या आ गया? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H1 एंड H2। समझ आ गई गल? तो पिछले क्वेश्चन के मुताबिक H1 H2 दा प्रोडक्ट किदा हिस्सा बन जाएगा? नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है जी। सो हुण असी इहदी वैल्यू देखिए। इट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 ये की होएगी? ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H1 इंटू H2। और यदी वैल्यू की होएगी? ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 बटा ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। सो वैल्यू सबस्टिट्यूट करिए। सो सब तो पहला ऑर्डर ऑफ H1 की वैल्यू है 27 गुणा 27 बटा 9। ठीक है जी। सो 9 तीए 27, 21 ते 60 81 आ गया। ठीक है जी। 20 तीए 60 तो 70 ते 81 आ गया 81। एंड so this order is greater than equal to 81, greater or equal. Also because it is subgroup, order of normalizer of H1 intersection H2 it divides order of G यानी कि 108। तो असी 81 तो वड्डा नंबर वो चूज करना जिहड़ा 108 नूं डिवाइड करदा होवे। वो कौन होएगा? वो इटसेल्फ होएगा। नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। सो दिस इज इक्वल टू 108 एंड दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। सो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ G है ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? नॉर्मलाइजर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब की है? H1 इंटरसेक्शन H2 is normal subgroup of group G। ठीक है जी। तो ये उदा नॉर्मल सब ग्रुप आ गया। जो नॉर्मल सब ग्रुप आ गया ਇਹਦਾ मतलब G is not simple। G is not simple क्योंकि ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ 9 ਵਾਲਾ ਨॉर्मल सब ग्रुप ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਲੋ 3 ਵਾਲਾ सब ग्रुप ਆ। तो ਇਹਦਾ मतलब it is not a simple। So in this way we can check any group of any order या group of any order। असी किसी लैक्चर च डिस्कस किया सी डाईहीड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n।
ठीक है जी। सो पहला असी ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ DN ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ DN ਕੀ ਸੀ? ਡਾਈਹੀਡਰਲ group of order 2n ਇਹ ਜਨਰਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट कर सकते हैं। ਇਹਦੀ प्रॉपर्टी की है? सो बेसिकली इट इज ए smallest group generated by two element, group generated by two elements, that is A and B, generated by A and B। ठीक है जी। और वो A B किदां दे आ वो मैं दसन लगा। यानी जिहड़ा DN है ये जनरेट दो एलीमेंट तो हो रहा A ते B तो, और A दा ऑर्डर n है, यानी A दी पावर n आइडेंटिटी के बराबर आ, पहली गल। दूजा B दा ऑर्डर 2 है, सो ਇਹਦਾ ऑर्डर 2 है। और तीजा B A B इनवर्स ये साडे कोल A इनवर्स दे बराबर हो जाता। सो B A B इनवर्स ये साडे कोल किस टाइप का हो जाता? ये हो जाता B A B दिस इज इक्वल टू B A इनवर्स दे बराबर। तो ये डाईहीड्रल ग्रुप की डेफिनेशंस आ, इनू याद रखना। ठीक है जी। सो आ दो तीन दी प्रॉपर्टी। इट इज़ जनरेटेड बाय A एंड B, A दा ऑर्डर n, B दा 2 और नाल आ गया B A B इक्वल टू A इनवर्स। सो अगला जिहड़ा आपां क्वेश्चन करन जा रहे हैं सो बहुत इंपॉर्टेंट है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डाईहीड्रल ग्रुप ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ करना। स्टेटमेंट की है? लेट दिस G be a group of order 2p p की है प्राइम नंबर, माइंड च रखना। और इत्थे सन ऑड प्राइम दिता, वेयर P साडे कोल है ऑड प्राइम। मतलब ये दो नूं आपां बाहर कढ़ता, क्योंकि इको ही जिहड़ा ईवन प्राइम कौन है? 2 है। सो इट इज़ ए ऑड प्राइम। देन G is either साइकलिक, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ 2p ਵਰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਈਹੀਡਰਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ डिस्कस किया। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर साडे कोल 2p फॉर्म दे विच लै लिया, सो जा तां इह साडे कोल साइकलिक होएगा, जे साइकलिक नहीं है तो ये किदां दा होएगा? ये डाईहीड्रल फॉर्म दे विच दी तरह हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन नूं असीं जिहड़ा है वो डिस्कस करना। ठीक है जी। ना अगेन बेसिकली तो साडे कोल उही थ्योरम्स आ जिहड़ियां बार बार असी यूज़ कर रहे हैं। नाउ दिस इज ऑर्डर ऑफ G, बड़े ध्यान नाल समझियो। 2 गुणा P की है प्राइम नंबर। नाउ इट इंप्लाइज P जिहड़ा है वो ऑर्डर ऑफ G नूं डिवाइड करता। क्लीयर हो गया जी, है ना?
तो P ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ G ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। तो एक असी थ्योरम की सी कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, एक सी कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। हुण इत्थे अबेलियन नहीं दिता तो असी कॉची थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, सैलो थ्योरम भी कह सकते हैं। सो बाय कॉची थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू G such that ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू P। सो तुसी इत्थे रीजन जरूर देना बाय कॉची थ्योरम। सो मैं बोल रहा लिख नहीं रहा, पर तुसी इत्थे इहदा रीजन जरूर देना भी ये स्टैप किस लॉजिक दे नाल आया, किस थ्योरम दी एप्लीकेशन दे नाल आया। हुण ये असी एक एलीमेंट लभ लिया जिहदा ऑर्डर P है, तो मैं ए नाल एक साइकलिक ग्रुप जनरेट करता और उहदा नाम रखता H। सो दिस इज ए बी ए साइकलिक ग्रुप ऑफ G। सो ये साडे कोल G दा साइकलिक ग्रुप आ गया। इहदा मतलब ऑर्डर ऑफ H ते ऑर्डर ऑफ ए सेम होणगे, क्योंकि यदा ऑर्डर सानू पता P आ तो H का भी P होएगा। क्लीयर हो गया। जे H का P हो गया तो H का G दे विच इंडैक्स कढ़ना होवे तो उहदा फार्मूला की हुंदा, ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ H। ये भी लैग्रैंजियस थ्योरम ही है। ये कितना आ गया 2P बटा P, यानी कि आ गया 2 के बराबर आ गया। फिर असें एक रिजल्ट किया सी, जिस सब ग्रुप का इंडैक्स 2 हुंदा वो हमेशा किदां दा सब ग्रुप हुंदा, नॉर्मल सब ग्रुप हुंदा G दे विच। जे नॉर्मल आ तो उहदा क्यूशेंट ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ये भी ध्यान रखना। H साडे कोल नॉर्मल सब ग्रुप होएगा G दे विच। ठीक है जी। नाउ ए जनरेटर आ H का, यदा मतलब ए H नूं बिलोंग कर रहा। ठीक है। और G दे विचों मैं कोई B एलीमेंट ले लिया और H नॉर्मल आ G दे विच, तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल B इनवर्स A इंटू B इट बिलोंग्स टू H। ये तुहानूं याद होवे डेफिनेशन, तो B इनवर्स ए बी फॉर बी बिलोंग्स टू G, और A बारे तो सानू पता ही है। सो वी गेट दिस कंडीशन, B इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू H। हुण मैं B नू जनरेट करन वाला एक होर साइकलिक ग्रुप ले लिया, लेट A विच इज जनरेटेड बाय B। H अज दा A नाल जनरेट करदा और B ले लिया मैं, इट इज़ जनरेटेड बाय साडे कोल B, और B का ऑर्डर कितना आया 2 आ। जे B का ऑर्डर 2 है दैन इट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ K मैं 2 के बराबर ले लिया। तो यदा मतलब ऑर्डर ऑफ B अगर 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, दैन वट इट मीन्स B square which is equal to identity। ठीक है जी। हुण एक तुहाडे माइंड च क्वेश्चन आना चाहिए, आ रहा कि नहीं, भी क्या 2 ऑर्डर का एलीमेंट कोई एग्जिस्ट करता? बिल्कुल करता। क्यों करता? क्योंकि जिहड़ा G का ऑर्डर है 2 गुणा P, जिद्दां P डिवाइड कर रहा सी ते उहदे नाल दा एलीमेंट सी, इधर 2 भी प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा, तो 2 दे ऑर्डर का एलीमेंट भी होएगा, वो आपां B रख लिया। और साडे कोल K जनरेटर हो गया B का, तो ऑर्डर ऑफ B साडे कोल आ गया B स्केयर। सो ये तो आपां ये भी लिख सकते हैं B ते B इनवर्स आपस दे विच बराबर हो गए। ठीक है।
दोनों आपां क्योंकि आपां डाईहीड्रल ग्रुप तक पुजना, सो उहदे अकॉर्डिंग साडे कोल इस वैल्यूज़ दे विच आपां आ गए। हुण आपां आ जिहड़ी उहदियां दो प्रॉपर्टीज़ आ, एक ए दा ऑर्डर पी होवे डाईहीड्रल लई, बी दा ऑर्डर 2 होवे, वो 2 वाला भी लभ लिया, पी वाला भी लभ लिया। तीजी प्रॉपर्टी रहिंदी बी ए इनवर्स दे बराबर होना चाहिए। सो बी ए बी राइट, बी की वैल्यू तुहानूं पता बी इनवर्स आ, इनू मैं लिख सकदा बी इनवर्स, फिर आ गया ए ते बी। सो सिंपल इहदी वैल्यू मैं सबस्टिट्यूट करती, जदों सबस्टिट्यूट की बी इनवर्स ए बी दे बराबर लिखता। हुणे इस रिजल्ट के मुताबिक ये किनू बिलोंग करता, ए बी इनवर्स ए बी किनू बिलोंग करता, एच नू। एच की है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो आ एलीमेंट किदां दा होएगा, ए दी पावर वर्गा। सो व्हाट इज दिस, दिस कैन बी रिटन एज ए रेज टू पावर आर, और आर की है फॉर सम इंटीजर आर, फॉर सम इंटीजर आर। होप आ कंसैप्ट तुसी समझ गए हो। पहला एदी जगह ते मैं आ वैल्यू सबस्टिट्यूट की, उस तो बाद मेरे को आ बन गया बी इनवर्स ए बी, और ए एलीमेंट एच नू बिलोंग करता। एच क्योंकि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए है, तो ये एलीमेंट किदां दे होणगे, ए दी पावर आर वर्गे। जे ए दी पावर आर वर्गे आ तो साडे कोल ए इंटीजर आर आ गया, जिहड़ा कि साडे कोल मैक्सिमम पी तक जा सकदा, सो पी तो छोटा होएगा। ठीक है जी, ये साडे कोल वैल्यूज़ आ गई। नाउ सो वट वी गेट ए नूं असीं लिख सकते हैं आइडेंटिटी ए इंटू आइडेंटिटी दिस वैल्यूज़, और आइडेंटिटी नूं लिख सकते हैं बी इनवर्स बी, फिर आया ए, फिर आया बी इनवर्स बी। सो जस्ट राइटिंग द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी, सो वट वी गेट, इनू असी बी इनवर्स भी लिख सकते हैं, चलो बी इंटू बी इनवर्स लिख दईए। फिर आ गया बी इनवर्स अंदर बी ए बी, फिर बाहर बी इनवर्स, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, तो यदी वैल्यू आ पई तुहाडे कोल, इस करके इनू मैं इदां लिखिया, ये आ गया बी इनवर्स ए दी पावर आर, फिर आ गया बी इनवर्स दिस वैल्यू। बी इनवर्स बारे तुहानू पता ही है, इस बी इनवर्स नू बी लिख लो, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी दे बराबर आ, ए दी पावर आर, सॉरी हेयर इट इज ए रेज टू पावर बी, हाँ इत्थे ए है, इत्थे आ गया ए दी पावर आर। नाउ दिस बाय यूजिंग द रिजल्ट, दिस कैन बी रिटन एज बी इनवर्स ए बी पावर आर, दिस वैल्यूज ए बी पावर आर। ये वैल्यू फिर सबस्टिट्यूट कर दियो, ये आ गया ए दी आर, फिर ए दी पावर आर। ठीक है, डबल हो गया, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए आर स्केयर, आर इंटू आर स्केयर। सो वट इट बिकम्स, ए नू आपां लिख लिया ए आर स्केयर, सो इट बिकम्स ए रेज टू पावर आर स्केयर minus 1 is equal to identity, this values. If this will become identity, then order of A divide r square minus 1. Order of this, what is order of A? This is P. So P divide r square minus 1. So what it means? R square is congruent to 1
ਮਡੂਲੋ ਪੀ, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने डिवाइड कर रहे हैं, तो मडूलो पी, then it means r is equal to plus minus 1. So either its value is 1 or either its value is plus 1 when we are in congruent modulo p. So case number 1, so we divided into two cases. Case number 1, if r is equal to plus 1. So if r is equal to plus 1, then BAB is equal to a raised to power r. So this is equal to a, and it implies BA, which is equal to AB, which is equal to B inverse A. B inverse the value can be B, so this is a BA. So AB is equal to BA, ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਨਰੇਟਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, we claim that G is abelian, G is abelian। तो असी A तो B कम्यूट कर गए, G नू abelian प्रूव करना, सो असी X ते Y दो एलीमेंट G दे विचों लवांगे जिहड़े कि उन्हां नू आपस दे विच कम्यूट करन, ठीक है जी। नाउ so this value, so it means now just A element of belongs to H and B element belongs to K, they commute to each other. Now X and Y, if I take X and Y belongs to H, this values, ਜਾਂ X ਤੇ Y ਅਸੀਂ K ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ठीक है, और नॉर्मल सब ग्रुप आ, तो इट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। सो इतों भी आप कर चुके, क्यों वाई एक्स, क्योंकि इन्हों के जनरेटर भी कम्यूट कर गए, सो ये भी कम्यूट करनगे, जे कम्यूट करनगे क्योंकि एच के साइकलिक ग्रुप आ, साइकलिक ग्रुप अबेलियन होंदे आ, ठीक है जी। सो टू प्रूव दिस आई टेक X belongs to H, तो H नू जनरेट कर रहा A, तो X नू मैं लिख सकता A दी सम पावर J वर्गा, राइट, वेयर J जेड़ा है वो P तो लैस होएगा क्योंकि इहदा जनरेटर P है, और दूजे पासे Y अगर K दे विचों लिया तो Y दा जनरेटर की है B है, also since A B जनरेटर आपस दे विच कम्यूट करते आ, तो साडे कोल की आ गया एक्स वाई, ये भी आपस दे विच कम्यूट करनगे, तो मतलब जिहड़ा साडे कोल G है ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, पहली गल। दूजी गल साइकलिक प्रूव करन लई H इंटरसैक्शन K दे विच इक्को ही एलीमेंट कॉमन आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि K दे विच दो एलीमेंट आ, आइडेंटिटी ते B A तो डिफरेंट आ, तो कॉमन एलीमेंट की हो गया E हो गया। इहदा मतलब ऑर्डर ऑफ H K this can be written as order H, order K over order of H intersection K, ठीक है जी। सो ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी है, ऑर्डर कितना P है, दूजे का कितना 2 आ, ਇਹਦਾ 1 आ, टोटल आ गया 2P, और एक दे बराबर आ गया G दे ऑर्डर दे बराबर आ गया, ਇਹਦਾ मतलब G साडे कोल HK दे बराबर आ गया, G HK दे बराबर आ गया, ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल की है ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ K
इन्हां दा GCD की है 1 है, H भी साइक्लिक आ, K भी साइक्लिक आ, तो साढ़े को G भी साइक्लिक होएगा। तो जे G साइक्लिक आ तो अबेलियन भी होएगा। सो उधर प्रूव करन दी लोड़ नहीं। सो असी डायरैक्टली इनू इस ढंग दे नाल भी लिख सकते। तो G साढ़े को साइक्लिक हो गया। केस नंबर 2 च ये क्लीयरली है, R की वैल्यू तुहाडे कोल आ गई -1। जे R की वैल्यू -1 आ गई तो BAB किहदे बराबर आ गया, A की बराबर -1। तो तीजी कंडीशन डाइहेड्रल ग्रुप की हो गई। सो वट वी गेट G जनरेटेड बाय A, B, दो जनरेटर हो गए। A की P आइडेंटिटी के बराबर आ, ठीक है। फिर दूजा की आ B की ऑर्डर 2 के बराबर आ, और तीजा की आ कंडीशन जिहड़ी BAB किहदे बराबर आ गई, A इनवर्स के बराबर आ गई। सो वट इज G? सो G इज डाइहेड्रल ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप। सो विच प्रूव आवर रिजल्ट भी जा तो G साइक्लिक होएगा 2p ग्रुप वाला, जे साइक्लिक नहीं है तो वह किदां दा होएगा, वो डाइहेड्रल ग्रुप होएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो एक क्वेश्चन असी होर डिस्कस कर लें जिहदा ऑर्डर 36 है ना। सो ऑर्डर ऑफ G अगर 36 है, सो पहला तो इनू प्राइम फैक्टर च तोड़ लिया, 2 9 18 3 × 3। सो ये आ गया 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब G ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਲੋ 2 सब ग्रुप होणगे, ठीक है जी, ਜਾਂ सैलो 3 सब ग्रुप होणगे, और इन्हां दा ऑर्डर होएगा 4 और इन्हां दा ऑर्डर होएगा 9, ठीक है। हुण नंबर लभीए। सो पहला आपां सैलो 3 नूं लै लीए, तो नंबर आ गया, नंबर ऑफ सैलो 1 + 3 के किनू डिवाइड करेगा, 4 नूं। तो के दियां 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गया 0 ते 1। सो के अगर 0 आ तो यदा मतलब अगर के 0 है, इफ के = 0, ठीक है, then G has 1 या यूनिक सैलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना जी, 9, और आल्सो इट इज़ नॉर्मल। तो मेरा काम आ गया, ठीक है जी। केस नंबर 2 जदों साडे कोल आ गया, मान लो पहला केस नहीं एप्लीकेबल होया, तो केस नंबर 2 दे विच के दी वैल्यू 1 हो गई। सो नंबर ऑफ सैलो ग्रुप 4 आ गए, नंबर ऑफ सैलो 3 ग्रुप जेड़े है वो 4 आ गए, ठीक है। हुण आपां अगे नूं वध पईए, यानी सैलो 2 सब ग्रुप वल चल पईए, ठीक है जी। हुण इहदे देखिए तो 1 + 2k किनू डिवाइड करनगे, 9 नूं। तो k दी वैल्यू आ गई 0 या 4, होर तो नहीं होएगा, k दी वैल्यू 0 या साडे कोल 4 आ जाएंगे। सो k 0 नाल साडे कोल की आ जाएगा, सैलो 2 सब ग्रुप हो जाएगा जिहड़ा कि नॉर्मल होएगा। सो जा तां साडे कोल, तो इहदे विच जिहड़ा साडा क्वेश्चन सी वो सी कि प्रूव दैट G हैज़ 1 और 4
सैलो 3 सब ग्रुप, वो आप प्रूव करता कि G हैज़, सो स्टेटमेंट मैं लिख देना दोबारा तो कि G हैज़ आइदर 1 और, so if statement is order of G is equal to 36, prove that G has either 1 or 4 shallow 3 सब ग्रुप। सो इदां भी पूछा जा सकता सब ग्रुप जिहड़ा कि असी प्रूव कर दिता। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव द एनी ग्रुप विच इज़ ए नॉट सिंपल या एनी अदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ जी। और इनू असी जिद्दां साइक्लिक ग्रुप की गल कीती सीगी, सो इदां ही अगर मेरे कोल प्राइम नंबर दे विच गल आ जाए, सो प्राइम नंबर की फॉर्म दे विच अगर ऑर्डर ऑफ जी मान लो पी क्यू है, दिस इज जिद्दां उत्ते आपां कीता सी 15 3 गुणा 5, तो नैचुरली जी किदां दा होएगा, साइक्लिक होएगा। ठीक है, सो बिल्कुल सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग असीं इहनूं प्रूव कर सकते हैं।